वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ एनिस बॉडीवाला। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स के एक्सरसाइज 7.1 की। टिल नाउ हमने सारे कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ लिए हैं जो एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए। करेक्ट, वी हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट इन अ वेरी वेरी गुड वे। हमने देखा इंटीग्रल कैसे डिफाइन हुआ है, विच इज कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव। देन हमने उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा, फिर उसकी फॉर्मूलाज, द प्रॉपर्टीज, एंड वी सॉल्व फ्यू एग्जांपल्स एज वेल। टुडे वी आर गोइंग टू कवर एक्सरसाइज 7.1, but I'll tell you that I'm not going to solve each and every problem because there are around 21-22 questions in the exercise. Almost all the problems are very much similar. I will try to give you the variety of the problems as much as possible. Correct? So let's start with question number 1. Now, from question number 1 to 5, we are supposed to find the derivative. What we are supposed to find? Antiderivative or integral by method of inspection. Correct? Let me write के question number 1 to 5 are to be solved by method of inspection. Correct? If you remember example number 1, that is how we are supposed to solve here. So let's say first one, it is given sine 2x. In the question number 1, it is given sine 2x. So we are supposed to find the antiderivative of this function sine 2x. How are we supposed to do that? So as we all know, we have solved that particular example number 1. In that we got that idea. Correct? So I can say that d by dx of cos 2x, d by dx of cos 2x is minus 2 sin 2x. That means I have to multiply with minus and divided by 2. Then it will become minus 2 sin x by minus 2. This will get cancelled and I am getting d by dx of minus 1 by 2 cos 2x as sin 2x. So I can easily say the antiderivative of sin 2x is minus 1 by 2 cos 2x. Am I clear? It's very simple. I just revise it for you so that you can do it in a very very good way. Correct? Second I am going to skip. Let's go for the third one. Let me say question number 3 only because यहाँ पे हम question के हिसाब से ही काम करेंगे. Correct? In the third one it is given e raised to 2x. So we all know कि e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही होता है. Correct? यानी कि d by dx of e raised to x, but we have here e raised to 2x. So what will be the derivative of e raised to 2x? तो e raised to 2x और चेन रूल के हिसाब से 2x का 2. Simple. So what I have to do? I have to divide both the side by 2. So it will become e raised to 2x by 2 is equals to e raised to 2x. The antiderivative of e raised to 2x is 1 by 2 times e raised to 2x. Are you getting me? So this is how we are supposed to solve the problem with the method of inspection. So you can pause the video and note it down. Now let's see fourth one. क्या दिया हुआ है फोर्थ में? ax plus b whole square. Now what should be the function जिसका डेरिवेटिव ax plus b whole square आएगा? We need to think of that function. Correct? So if I do the derivative of ax plus b whole cube, then it will come out as 3 times ax plus b whole square. ध्यान से देखना हाँ. और फिर ax plus b चेन रूल अप्लाई करोगे तो you will get a as well. So I have to divide both the side by 3a. So 1 upon 3a into ax plus b whole cube is equals to ax plus b whole square. तो क्या कहेंगे?
एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax plus b whole square is 1/3a ax plus b whole cube. करेक्ट. सो ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. एंड फ्रॉम हियर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. देखो, जब हमने ax प्लस बी होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव फाइंड किया, यानी कि समहाउ इंटीग्रेशन किया, तो हमने x का जो कोफिशिएंट है ना उसको डिवाइड में लिया है. देखो, why I'm telling you this over here, maybe in the exercise 1 or 2 problems are there in which we need this concept, है ना. We have this concept properly in after this particular exercise, we'll understand at that particular point as well, but for the time being just remember that if you do the integration or antiderivative of a function, then make sure that you divide the coefficient of x. Correct. We'll see that, don't worry about that right now, but this is the antiderivative of ax plus b whole square. Next is sine 2x minus 4 times e raised to 3x. Now how can we solve this particular question? मतलब we need to think of a such function जिसका डेरिवेटिव ये हो. अरे ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना. करेक्ट. चलो एक काम करते हैं, sin 2x कब आएगा? So let me say d by dx of cos 2x will be minus 2 sin 2x, यानी कि d by dx of minus 1 by 2 cos 2x will give me sin 2x. चलो ठीक है, अच्छी बात है. So sin 2x को जब हम एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो minus 1 by 2 cos 2x से रिप्लेस करेंगे. सिमिलरली ये कब आ सकता है? फोर ई रेस टू 3x. तो सिंपल सा लॉजिक देखो कि अगर मैं e रेस टू 3x का डेरिवेटिव करूं तो इट विल कम आउट एज e रेस टू 3x इंटू 3. अरे लेकिन मुझे तो इसके साथ इंटू में 4 चाहिए. अब क्या करें? तो एक काम करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं. ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की बात कर रहा हूं. यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड. अब e रेस टू 3x इंटू 4 चाहिए, तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, d by dx ऑफ 4/3 e रेस टू 3x इज इक्वल्स टू 4 e रेस टू 3x. ये कांस्टेंट ही है. वी नो इन डेरिवेटिव कांस्टेंट बाहर निकाला जाता है, 4 कट हो जाएगा और 3 उधर जाएगा, तो e रेस टू 3x इंटू 3 बन जाएगा. सो फॉर दिस sin 2x ये एंटी डेरिवेटिव, फॉर 4 e रेस टू 3x ये एंटी डेरिवेटिव. तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइंड लिख लेते हैं. दोनों को कंबाइंड करके लिख लेते हैं, जिससे हमारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए. सो d by dx ऑफ minus 1 by 2 cos x cos 2x है, माइनस d by dx ऑफ 4/3 e रेस टू 3x. और इन्हें हम डिफरेंशिएशन का जो लीनियर प्रॉपर्टी वाला रूल था कि भाई दो फंक्शन अगर सब्ट्रैक्शन में हो तो सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो सिमिलरली अगर दो फंक्शन सेपरेटली में डिफरेंशिएट है तो उन्हें कंबाइंड कर सकते हैं. दैट इज माइनस 1 by 2 cos 2x माइनस 4/3 e रेस टू 3x. सिंपल. सो इसका आंसर डेफिनेटली क्या आएगा? दैट विल बी sin 2x माइनस 4 e रेस टू 3x. वो आप यहां पे भी लिख लेना प्लीज. sin 2x माइनस 4 e रेस टू 3x, इसका डेरिवेटिव ये. सो द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x minus 4 e raised to 3x is minus 1 by 2 cos 2x minus 4 by 3 e raised to 3x. This is how we can do antiderivative by method of inspection for two equation or two function at the same time. करेक्ट. देखो मैं इसको शॉर्ट में भी खत्म कर सकता था, डायरेक्टली यहां से ये लिख दूं कि भाई इसका डेरिवेटिव, बट आई डोंट वांट टू मेक इंप्लीमेंट ऑन यू, आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, है ना, कि क्यों वो कर रहे. दैट इज व्हाई आई डिड लिटिल बिट वे लॉन्गर. अगर आप कहीं और देखोगे तो यू मे फील लाइक क्या ये तो 2 स्टेप का सम था, व्हाई वी हैव टू डू दिस मच बिगर. दिस इज फॉर योर ओन बेटरमेंट दैट यू कैन हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि यहां से ये कैसे आया.
all that matter. Otherwise it's very simple to do directly as well. Correct? Pause the video and note it down. Now find the following integrals. Till now 1, 2, 3, 4, 5 we did by method of inspection. Now we want to find the integrals from 6 to 20. So there are lots of questions over here. I will solve few, not all of them. In some questions I will give you the idea and you will solve by yourself. Correct? So let's start with the sixth one. What do we have? Integral 4e raised to 3x plus 1 dx. तो सबसे पहला हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4 कांस्टेंट e raised to इंटीग्रल ऑफ 3x dx प्लस 1 dx. 4 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा. नाउ हियर कम्स दैट पर्टिकुलर रूल दैट आई टोल्ड यू कि अगर आपका x का कोफिशिएंट जो भी हो उसको डिवाइड में लेना है, वो यहाँ पे आ जाएगा e raised to 3x का इंटीग्रल e raised to 3x डिवाइडेड बाय 3. क्यों आता है? क्योंकि आपको वो पता है एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा. प्लस 1 का x प्लस c. दिस इज योर आंसर. करेक्ट. लेट मी गो फॉर 8. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx. देखो सारे प्रॉब्लम्स इजी ही है ना. आई एम जस्ट सॉल्विंग इट टू गिव यू लिटिल बिट ऑफ आइडिया सो दैट यू पीपल कैन सॉल्व. सिंपल. सो यहाँ पे क्या करेंगे? a कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx, b कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ x dx, c कांस्टेंट और 1 dx. तो a एज इट इज x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, b एज इट इज x का x स्क्वायर बाई 2, c एज इट इज 1 का x प्लस. अब यहाँ पे देखो a b c ऑलरेडी आ चुका है, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट को है ना c डैश बोल देते हैं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग. लेट मी से c1 नॉट डैश, c1. एंड आई डोंट वांट टू मेक यू कंफ्यूज विद दिस टू c, दैट इज व्हाई हमने उसको c1 बोल दिया. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स सिंपल. अब इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं. दिस इज अवर आंसर, है कि नहीं? सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे हमारे लिए कोई भी डिफिकल्टी है इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने में. Let's go for 10th one. Integral square root of x divided by 1 minus square root of x का square dx. अब अगर आप इसको देखो, so first thing comes in your mind should be let's expand this bracket, यानी कि whole square को expand कर लेते हैं. If I expand the whole square, it will be root x का square x 1 upon root x का square 1 upon x. और जब ट्वाइस करोगे ना, ध्यान से देखना, 2 टाइम्स रूट एक्स और ये रूट एक्स कट होके -2 बचेगा एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस. एम आई करेक्ट? है ना. चलो अब क्या करें? इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx -2 कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ 1 dx. सिंपल. अब x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 1 अपॉन x का log mod x minus 2 1 का x plus c. This is your answer. Are you getting me? So there won't be difficulty at all to solve this kind of integrals. I don't think so कि इसमें हमें यहां तक कोई भी difficulty feel हुई हो. Correct? चलो let's move further. 10th के बाद कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करें वो मैं थोड़ा देख लेता हूं. Let's say 11 इजी है. Let's go for 12th. यू मे बी थिंकिंग सर एक करा रहे एक छोड़ रहे, तो जस्ट बिकॉज आई एम फीलिंग कि वो आपसे हो सकता है तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं. ऐसे तो 12 भी हो जाएगा बट स्टिल x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट x dx. हाउ कैन वी इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर फंक्शन x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाय रूट x? तो कैन आई से रूट x यानी कि x रेज टू 1/2. रूट x कैन बी रिटर्न एज x रेज टू 1/2. और फिर यहां से कर लेते हैं रिवर्स एलसीएम, यानी कि x रेज टू 3 डिवाइडेड बाय x रेज टू 1/2, 3x डिवाइडेड बाय x रेज टू 1/2 एंड 4 डिवाइडेड बाय x रेज टू 1/2 dx. सिंप्लीफाई कर लो. सारे x रेज टू 1/2 ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव होंगे. करेक्ट. नेगेटिव अगर हो रहे हैं तो 3 माइनस 1/2, 3 2 6 माइनस 1 5/2, तो ये हो जाएगा x रेज टू 5/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट x
ये ऊपर जाएगा, x 1 माइनस 1/2 तो हाफ ही बचेगा, सो x रेज टू 1/2 dx प्लस ये वाला टर्म जब ऊपर जाएगा तो इट विल बी सिंपली 4। अच्छा 4 तो कांस्टेंट है तो लेट्स टेक इट आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल, और x रेज टू माइनस 1/2 dx। आर यू गेटिंग मी? करेक्ट। चलो अब x रेज टू 5/2 का इंटीग्रल तो हमने सीखी है फॉर्मूला कि पावर में 1 ऐड करके उसी को डिवाइड में ले आना। करेक्ट, तो 5/2 प्लस 1 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2। यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और इंटू में 3 है ना, ये 3 भूल नहीं जाएंगे, प्लस 4 x रेज टू 1/2 में ऐड करेंगे तो x रेज टू पॉजिटिव 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। इस तरह से हमारा ये जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे छोटा सा सिंप्लीफिकेशन स्टेप हमें करना है, क्या कि ये जो सारे 2 डिनोमिनेटर में उसे ऊपर ले जाओ, पॉसिबली जो कट होता है वो कट कर दो, तो ये 2 ऊपर जाएगा, सो इट विल बी 2 टाइम्स x रेज टू 7/2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस यहाँ पे ये 3 कट, फिर भी 2 तो ऊपर जाएगा ही, सो इट विल बी 2x रेज टू 3/2 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 2 8 टाइम्स x रेज टू 1/2 प्लस द कांस्टेंट c। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे रूट एक्स मल्टी डिवाइड में है तो वैसे रूट एक्स मल्टीप्लाई में भी आ सकता है। इफ रूट एक्स इज इन मल्टीप्लीकेशन सिंपली मल्टीप्लाई विद ऑल द टर्म्स वी हैव इन द ब्रैकेट, है ना, तो इसी तरह से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल। नाउ लेट्स गो फॉर 13th वन। 13 में बोला है इंटीग्रल x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx। अब ये अगर आप देखो तो कैसे करोगे? यू मे बी फीलिंग वेरी वेरी डिफिकल्टी, कह रहे ये क्या आ गया, अब हमसे कैसे होगा? तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि अगर मैंने इन दोनों टर्म में से x² कॉमन निकाला, इफ आई टेक x² कॉमन फ्रॉम दिस 2, तो कैन आई गेट समथिंग लाइक दिस x माइनस 1, और इन दोनों में से 1 कॉमन निकाला तो भी x माइनस 1, तो x माइनस 1 कॉमन निकाल के कट हो गया, तो आई एम लेफ्ट विथ ओनली x² प्लस 1 dx, और x² का होगा x³ बाय 3, 1 का होगा x प्लस c। इतने बड़े फंक्शन का आंसर सिंपली इतनी इजी वे में हमें मिल गया। करेक्ट, बट व्हाट वी नीड टू डू इज we need to have a proper eye to observe what we have in the given function. Correct? You can pause the video till here and note it down. Now let's start with question number 16. Integral 2x minus 3 cos x plus e raised to x dx. Simple. Now here also we are simply supposed to put the formulas because everything is known to us. So how we are going to do this? So let me say integral में 2 constant x dx माइनस 3 कांस्टेंट cos x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x dx। सो 2 x का इंटीग्रल होता है x² बाय 2 माइनस 3। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos x? ध्यान से अच्छे से बताना, है ना। यस, इट इज sin x प्लस e रेज टू x का e रेज टू x प्लस 6। दैट्स इट, प्रॉब्लम डन। बोलो कोई भी डिफिकल्टी है? नॉट एट ऑल, हम आराम से कर रहे हैं ना ऐसे प्रॉब्लम। नाउ 17 इंटीग्रल में 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x dx। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई भी डिफिकल्टी होगी हमें। करेक्ट, अगेन 2 कांस्टेंट x² dx माइनस 3 कांस्टेंट sin x dx प्लस 5 कांस्टेंट एंड रूट x dx। करेक्ट, अब x² का इंटीग्रल x³ बाई 3, sin x का माइनस cos x। प्लीज रिमेंबर दिस, sin x का डेरिवेटिव प्लस cos x आता है, लेकिन sin x का इंटीग्रल माइनस cos x आता है, प्लस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट यानी कि 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। नाउ ऑलवेज रिमेंबर दिस, अगर इतना आने के बाद छोड़ दिया ना आधा मार्क कट जाएगा। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? वी हैव अ सिंप्लीफिकेशन स्टेप। देखो माइनस माइनस प्लस होगा, ये 2 हम ऊपर ले जा सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू पीपल डू दो स्टेप्स ऑल्सो। सो दिस विल बी
2/3 x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 2 ज़ा 10/3 x⁵² प्लस c. दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व. डोंट लीव इट हियर. मेक श्योर कि जितना पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है वो आप कर लो. करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 18. 18 में क्या दिया हुआ है? sec x इंटू sec x प्लस 10x. अरे ये तो बहुत इजी है. ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, इफ यू रिमेम्बर. करेक्ट. सिंपली sec x अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो इट विल बिकम sec² x प्लस sec x 10x dx. नाउ स्प्लिट देम, मतलब के सेपरेट ले लो. sec² x dx प्लस sec x 10x dx. व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ sec² x? तो वो आता है 10x प्लस sec x 10x का sec x प्लस c. दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. करेक्ट. एकदम सिंपल है. मुझे याद है वहां तक हमने एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें था cosec x इंटू cosec x प्लस cot x. तो वो इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था और इसको भी उसी तरह से हमने सॉल्व किया. करेक्ट. लेट्स गो फॉर 19. sec² x अपॉन cosec² x. अब ये बताओ कैसे करोगे? वी हैव द इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर sec² x एज वेल एज cosec² x. बट अभी तक हमने कोई ऐसा रूल नहीं सीखा है कि जिसमें डिनोमिनेटर में हो और हम इंटीग्रल कर ले. वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ रूल्स विथ अस राइट नाउ और मे बी नॉट इन द फ्यूचर. आई डोंट नो. है ना. क्या है, फ्यूचर को फ्यूचर में रिवील करना चाहिए. अभी से रिवील कर देते तो एक्साइटिंग नहीं रहता है. सिंपल. सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज, कैन आई से sec² x यानी कि 1 अपॉन cos² x और cosec यानी कि 1 अपॉन sin² x. सो ये हो जाएगा sin² x अपॉन cos² x और sin² अपॉन cos² होता है tan² x. अरे लेकिन डू वी हैव फॉर्मूला ऑफ tan² x? आई डोंट थिंक सो. मैंने यहां तक कहा है कि tan x की फॉर्मूला आएगी, लेकिन विल सी दैट इन द नियर फ्यूचर. बट tan² x तो एनी हाउ पॉसिबल नहीं है हमारे लिए इंटीग्रेट करना. मतलब क्या हमारे लिए सम गलत हुआ यहां तक? नो. वाई? हमारा टारगेट क्या है? वी हैव टू सिंप्लीफाई इन सच अ वे दैट वी कैन गेट टू द सच फंक्शन के जिसका इंटीग्रल पॉसिबल हो. तो भले tan² का नहीं है, लेकिन tan² से एक आइडेंटिटी आती है, वो है sec² x माइनस 1. इसका इंटीग्रल पॉसिबल है. इंटीग्रल ऑफ sec² x dx माइनस 1 dx. क्या? तो sec² का tan x माइनस 1 का x प्लस c. है ना. सो यू नीड टू मेक श्योर सच अ वे कि आपको जो भी करना है, आपके फंक्शन को कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करना है दैट यू गेट अ फंक्शन जिसका इंटीग्रल पॉसिबल हो. करेक्ट. अदरवाइज आई कैन डायरेक्टली सॉल्व फ्रॉम हियर ना. ऐसा नहीं होता. करेक्ट. डायरेक्टली इंटीग्रेट पुट करना इज अ डिफरेंट थिंग. एंड स्टिल वी आर इन द एक्सरसाइज 7.1. जैसे जैसे आगे जाएंगे हमें और सिंप्लीफिकेशन पे काम करना है ना. हमारा पूरा जो फोकस होगा वो कहां होगा? How can we reduce our function in such a way that we get something जिसका हम इंटीग्रेट कर सके. करेक्ट. सो दैट इज हाउ वी आर सपोज टू डू दिस. सिंपल. नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 20, जो आई गेस इसका लास्ट है. एज आई टोल्ड यू दैट 6 से लेके 20 तक का हम इंटीग्रल सॉल्व करेंगे. सो 20 में दिया है 2 माइनस 3 sin x divided by cos² x dx. Now how are we supposed to solve this? क्योंकि in the last video or last class I told you something like this, don't convert this into 1 minus sin² x, because if you do such way it is difficult for us to solve. So what we did, we took reverse LCM like this. 2 upon cos² x minus 3 sin x upon cos² x dx. सिंपल. अब cos² जो है वो ऊपर चला जाएगा तो इट विल बिकम sec² x माइनस 3 sin अपॉन cos होता है 10. एक cos नीचे बचा है, ऊपर जाके हो जाएगा sec x dx. 2 कांस्टेंट
इंटीग्रल ऑफ sec x dx माइनस 3 कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ sec x tan x dx। अब तो मुझे आता ही है इन दोनों का इंटीग्रल, है कि नहीं। sec x का क्या आएगा tan x और sec x tan x का sec x प्लस c। दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व, करेक्ट। 6 से लेके 20 में आई नो मैंने नहीं तो भी 5 या 6 प्रॉब्लम आपके लिए छोड़े होंगे, बट आई गेस यू पीपल कैन ट्राई दैट। इवन इफ आई लेफ्ट दिस होल एक्सरसाइज फॉर यू ना, यू कैन डू दैट, डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल। आराम से आप लोग पूरे के पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो वंस सो दैट यू कैन गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ हमने जो किया वो सब राइट है, करेक्ट। विल हैव 2 more problem which are given in the form of MCQ, but till then you can pause the video and note it down. Now from question number 21 and 22, those are MCQs. I am going to solve this 22 for you because 21 is very easy. Similar problem we did root x plus root x minus 1 upon root x का whole square. Same kind of question is there in example question number 21. So let's try to solve this particular question. Now how can we solve this question? D by dx of f of x is equals to 4x cube minus 3 by x raised to 4 such that f of 2 is 0, then f of x is. So think properly कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएट किया तो ये आंसर आया, तो फिर क्या करना पड़ेगा? We have to find the antiderivative of this function to get f of x. Am I right? यही कंसेप्ट हमारा चल रहा है कब से कि f of x का डिफरेंशिएट किया तो f dash x मिला, करेक्ट। सो f of x इज अननोन, दिस f dash x इज नोन, एंड इफ आई इंटीग्रेट दिस वन या एंटी डेरिवेटिव करूं तो मुझे f of x मिल सकता है। दैट मीन्स माई टारगेट हियर, व्हाट विल बी माई टारगेट? तो सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं जो दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू 4, करेक्ट। एंड नाउ वी वांट टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू 4 इज, क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू 4 dx। मुझे सीधे सीधा इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, चलो तो इसका इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं। 4 कांस्टेंट x क्यूब का x रेज टू 4/4, सॉरी थोड़ी हड़बड़ी में ऐसा हो गया। लेट्स से 4 कांस्टेंट x क्यूब dx माइनस 3 कांस्टेंट एंड 1 अपॉन x रेज टू 4 dx। Now if I integrate this, let me do integration over here, है ना, यहीं पे करते हैं, ज्यादा वो नहीं करना है, खिचड़ी नहीं करना है। So x क्यूब का क्या होता है? x रेज टू 4/4 माइनस 3 कांस्टेंट। अब अगर आप यहां ध्यान दो तो x रेज टू -4 ऊपर जाएगा, ऊपर जाके -4 हो जाएगा, करेक्ट। और उसमें आप 1 ऐड करोगे तो इट विल बी x रेज टू -3/-3 प्लस c, correct। So if you observe 4 cut, 3 cut, minus plus, so I am left with x raised to 4 plus 1 upon x cube plus c, यानी कि a और c में से आंसर आएगा, b और d रूल्ड आउट हो गया। अब देख लो ना, x raised to 4 plus 1 upon x cube यहीं पे है ना, ये दोनों में, प्लस c। अब c की वैल्यू प्लस 129/8 आती है कि माइनस आती है, उस पर डिपेंड करेगा आपका आंसर a या फिर c। कैसे फाइंड करेंगे? तो वी हैव दिस कंडीशन f ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। ये बेसिकली आपको जो आंसर मिला ना, दिस इज f ऑफ x, ये आपका f ऑफ x ही है। तो क्या करो, x की जगह पे 2 रिप्लेस कर दो। सो 2 रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस c इक्वल्स टू 0। 2 रेज टू 4 16, 1 अपॉन 8 प्लस c 0। तो एलसीएम लेना है तो ले लो, या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख दो c इक्वल्स टू -16 माइनस 1/8। अब मुझे इतनी गारंटी है कि आंसर ए ही आएगा, भले ही मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप कैलकुलेट करना। बट वाई आई एम सो मच सर्टेन कि c की वैल्यू ऑप्शन मतलब -29/8 आएगी, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव हियर, -16 माइनस 1/8। इफ यू टेक एलसीएम इट विल बी नेगेटिव इन ओनली। नाउ लेट्स जस्ट सिंपली चेक फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो 16 इंटू 8 कितना होगा? तो 16 इंटू 8 चेक करना पड़ता है, इतना तो याद मुझे भी नहीं रहता, वेरी बैड। 8 6
48, 4 and 12. So yes, correct. Minus 128 minus 1 by 8, that will give us minus 129 by 8. So yes, c की वैल्यू minus 129 by 8 आ गई. इसमें रिप्लेस करेंगे, so I'll get x raised to 4 plus 1 upon x cube minus 129 by 8. Simple. Are you getting me? So this is how we are supposed to solve all the problems of this exercise. Now these are unique and important. Why I am saying this is important and unique? Because इसमें बाउंड्री कंडीशंस वाला प्रॉब्लम है ना, जिसमें आपका कांस्टेंट c रिमूव हो जाता है बाय पुटिंग द कंडीशन एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ c, है ना, जिससे मैंने ये भी कहा था कि ये अब आपका यूनिक आंसर हो गया. व्हाई वी कैन से इट्स एन यूनिक आंसर? बिकॉज इसके अलावा और कोई आंसर पॉसिबल नहीं है फॉर दिस कंडीशन f of 2 equals to 0. Are you getting me? If the condition changes, answer can change, but for this condition, this is unique answer. Please make sure that, है ना, जब तक हम c की वैल्यू पुट नहीं करते तब तक हम लोग ये नहीं बोल सकते कि दिस इज यूनिक आंसर, बिकॉज जैसे जैसे c चेंज होगा वैसे वैसे आपकी वैल्यूज चेंज होती रहेगी. बट अगर आपको डिफरेंशिएशन में याद हो तो डिफरेंशिएशन में हम क्लियरली बोलते हैं कि उसका जो भी डिफरेंशिएशन हो रहा है वो यूनिक होता है ना, किसी भी दिए हुए फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो यूनिक होता है. एंड दैट इज वाई इफ यू मे रिमेम्बर, तो मैंने ऐसा भी कहा था कि आपके फंक्शन का सबका आंसर सेम आना चाहिए एंड नो वन कैन गेट डिफरेंट आंसर. कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि सर मेरा ये आया मेरा वो आया. एवरीवन शुड गेट सेम आंसर बिकॉज इट इज यूनिक. बट यहां पे जरूरी नहीं है कि सबका आंसर सेम हो, लेकिन वो डिफरेंट कहां पे होता है? एट सी ओनली. मतलब बाकी का जो फंक्शन है वो तो सेम ही रहना चाहिए, है ना. सो यहां पे भी मैं काइंडली ऐसा तो बोल ही सकता हूं दैट ऑल ऑफ योर आंसर शुड बी सेम. जस्ट सी कैसे लिखा है उस पे मैटर करता है. सम में राइट प्लस सी, सम में राइट माइनस सी, सम में राइट अगर प्रॉब्लम के अंदर फंक्शन लॉग में है तो लॉग सी लिख दे. सो वो सिर्फ एक जो है वो वेरी करता है, बाकी आगे के जो फंक्शंस है वो सेम ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होने वाले. करेक्ट. सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग. और मैं एक आपको घर पे टास्क दे रहा हूं, यू पीपल शुड डू दैट. एंड इफ यू गेट समथिंग यू कैन डेफिनेटली टेल इन द कमेंट सेक्शन. और टास्क ये है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में डिफरेंस क्या है ये थोड़ा सा फाइंड करो, थोड़ा सा स्टडी करो, इन्वॉल्व हो थोड़े से इसके अंदर. ट्राई टू गेट द आइडिया के हाउ वी कैन गेट द डिफरेंस, क्या है डिफरेंस. एंड इफ यू गेट समथिंग यू कैन डेफिनेटली टेल योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. करेक्ट. सो विल स्टॉप हियर फॉर द डे एज आई कैन easily say that our exercise is over. So that's good enough from my side and thank you so much for watching.